Hello everyone, welcome to my channel. Let's start today with our another chapter of history. Today we will start with chapter 8, Ashoka, the emperor who gave up war. अशोका एक ऐसा सम्राट जिसने युद्ध छोड़ दिया था. So we will learn about Ashoka in this chapter. So the chapter starts with Roshan's rupees. Roshan clutched the crisp notes that her grandfather had given her on her birthday. While she badly wanted to buy a new CD, she also wanted to just see and feel the brand new notes. It was then that she noticed that all of them had a smiling face of Gandhiji printed on the right and a tiny set of loins on the left. What were the loins, therefore? She wondered. रोशन ने फटाफट से अपने दादा से नोट्स लिए जो उन्होंने उसके बर्थडे पे उसको दिए थे. उसको एक नई सीडी खरीदनी थी, इसलिए उसने फटाफट से नोट्स लिए, पर साथ साथ में उसको नए नोट्स को फील भी करना था कि नए नोट कैसे लगते हैं. तो उसने क्या नोटिस किया नोट्स पे कि एक तरफ तो गांधी जी की फोटो प्रिंटेड है ऑन द राइट साइड ऑफ द नोट, बट लेफ्ट साइड पे छोटे छोटे टाइनी टाइनी लॉइंस भी हैं. पर क्यों, ऐसा क्यों, उसने वंडर किया. So we will start our chapter and then we will see her answer in this chapter. A very big kingdom and empire. Empire का मतलब होता है एक बहुत बड़ा kingdom और साम्राज्य. The loins that we see on our notes and coins have a long history. They were carved in stone and placed on top of a massive stone pillar at Sarnath. जो loins हम अपने notes and coins पे देखते हैं उनकी बहुत लंबी हिस्ट्री है. उनको कार्व किया गया है स्टोन पे, उसकी खुदाई की गई है स्टोन के ऊपर, पत्थर के ऊपर, एंड उसको बहुत बड़े पिलर के ऊपर सारनाथ में रखा गया है. एंड वी हैव सीन सारनाथ इन आवर लास्ट चैप्टर ओनली. सारनाथ इज अ प्लेस लोकेटेड नियर वाराणसी where Buddha taught for first time. Ashoka was one of the greatest rulers known to history, and on his instructions, inscriptions were inscribed on pillars as well as on rock surfaces. Before we found out what was written in these inscriptions, let us see why his kingdom was called an empire. तो अशोका एक बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर थे, जाने माने रूलर थे हिस्ट्री के. एंड जो भी उनकी इंस्ट्रक्शंस थी उनको इंस्क्राइब किया गया, उनकी जो भी राइटिंग्स थी उनको इनग्रेव किया गया हार्ड सरफेसेस के ऊपर, जैसे कि रॉक सरफेसेस. सो अब हम देखते हैं कि उनके किंगडम को एम्पायर क्यों बोला जाता था. The empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya more than 2300 years ago. Chandragupta was supported by a wise man named Chanakya or Kautilya. Many of Chanakya's ideas were written down in a book called the Arthashastra. So, जो एम्पायर अशोका रूल कर रहे थे उनको फाउंड किसने किया था? उस एम्पायर के फाउंडर थे अशोका के ग्रैंडफादर, अशोका के दादा चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने 2300 साल पहले इस एम्पायर को फाउंड किया था. और चंद्रगुप्त जी को एक विद्वान थे, वो बहुत सपोर्ट करते थे, एंड उस विद्वानी का नाम है चाणक्य. चाणक्य के बहुत सारे आइडियाज है हमको देखने को मिल जाते हैं बुक में जिसका नाम है अर्थशास्त्र. There were several cities in the empire. बहुत सारी सिटीज थी एम्पायर में, एंड वो हम देख सकते हैं अपने इस मैप में, मैप ऑफ द मौर्यन एम्पायर. So, the important cities were Ujjain, Taxila, and Pataliputra. So, there were three important cities: Taxila, Ujjain, Pataliputra. So, these included capital Pataliputra, तक्षशिला एंड उज्जैन. पाटलिपुत्रा थी वो कैपिटल थी इस एम्पायर की. तक्षशिला was a gateway to the northwest, including Central Asia, while Ujjain lay on the route from north to south India. Merchants, officials, and craft persons probably lived in these cities.
सो तक्षशिला क्या था? द्वार था, नॉर्थ वेस्ट का गेटवे था, इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया के लिए। और उज्जैन था, वो रूट पे था नॉर्थ टू साउथ इंडिया के। हियर वी कैन सी नॉर्थ, this is the north and this is the south, and here in between is Ujjain. Merchant officials and craft persons in cities में रहते थे. In other areas, there were villages of farmers and herders. In some areas, such as central India, there were forests where people gathered, forest produce and hunted animals for food. So, और भी एरियाज थे जहाँ पे विलेजेस थे, फार्मर्स और हर्डर्स रहते थे. फार्मर्स जो क्रॉप्स ग्रो करते थे और हर्डर्स जो एनिमल रियर करते थे. सो बहुत सारे फॉरेस्ट थे जहाँ पे लोग रहते थे. वहाँ का फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदर करके और हंट करके एनिमल्स को वो अपना फूड प्रोड्यूस करते थे. पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस. दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एंड वॉर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स एज वेल. तो अलग अलग जगह पे एम्पायर के अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी और हर जगह अलग अलग खाना खाया जाता था, अलग अलग कपड़े पहने जाते थे. Now we will see what is dynasty. When members of the same family become rulers one after another, the family is often called a dynasty. The Mauryas were a dynasty with three important rulers: Chandragupta, his son Bindusara, and Bindusara's son अशोका. सो जब एक ही फैमिली के मेंबर एक के बाद एक रूलर बनते हैं तो उस फैमिली को बोला जाता है डायनेस्टी. और ऐसे ही मौर्याज भी एक डायनेस्टी थी, बिकॉज चंद्रगुप्त रूलर थे, फिर उनके सन बिंदुसारा रूलर बने, एंड उसके बाद अशोका रूलर बने, हु वाज सन ऑफ बिंदुसारा. एंड नाउ वी विल सी इन दिस मैप इंस्क्रिप्शंस कहाँ कहाँ पे पाई गई थी. इंस्क्रिप्शंस देखते हैं कहाँ कहाँ पे मिली थी. जो भी रेड डॉट के साथ लोकेटेड है वो सब इंस्क्रिप्शंस है. सो लंपाका, कांदाहार, मानसेरा, शाहबदगरी, कलसी, तोपरा, बहापुर, मेरठ, लुम्बिनी, रामपुरवा, लोरिया अराज, इलाहाबाद, सारनाथ, कौशंबी, गुज्जर, रूपनाथ, सांची, पनगुरारिया, गिरनार, सोपारा, सनथी, धौली, जोगारा, मास्की, येरागुडी, ब्रह्मागिरी. And these were the places where inscriptions were found. You can even take a screenshot of this for the reference purpose. So this is the Mauryan Empire map which show the principal cities and some of the places where inscriptions were found. Now, हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स. तो अब हम देखते हैं कि एम्पायर किंगडम्स से अलग कैसे थे. Emperors need more resources than kings because empires are larger than kingdoms and need to be protected by big armies. So, also they need a larger number of officials who collect taxes. So, there were two reasons कि empires kingdoms के अलग क्यों थे. एम्परर्स को ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते थे क्योंकि जो एम्पायर्स थे वो किंगडम से बड़े थे और उनको बिग आर्मीज भी चाहिए होती थी अपने एम्पायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. एंड सेकंड, उनको टैक्स कलेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे ऑफिशियल्स की नीड थी बिकॉज एम्पायर वर बिगर देन किंगडम्स. रूलिंग द एम्पायर. As the empire was so large, different parts were ruled differently. एम्पायर बहुत बड़ा होता था इसलिए अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग तरीके से रूल किया जाता था, अलग अलग लोग रूल करते थे. The area around Patliputra was under the direct control of the emperor. This meant that officials were appointed to collect taxes from farmers, herders, craftspersons, and traders who lived in villages and towns in the area. Officials also punished those who disobeyed the ruler's orders. Many of these officials were given salaries. Messengers went to and fro, and spies kept a watch on the officials. And of course, the emperor supervised them all with the help of members of the royal family and senior ministers. So, emperor large था इसलिए उनको अलग अलग तरह से रूल किया जाता था. जो एरिया था पाटलिपुत्रा के अराउंड
Patliputra was the capital of the empire, and Patliputra is the present day Patna, which is located in Bihar. So जो एरिया था पाटलिपुत्रा के आसपास का वो डायरेक्ट कंट्रोल करते थे एम्परर, और इसका मतलब ये था कि जो भी ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए थे वो डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करते थे। किस किस से? फार्मर से, हर्डर से, क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेडर से। और तो और जो लोग विलेजेस और टाउन्स में भी रहते थे इन एरियाज में, पाटलिपुत्रा के अराउंड बाय एरियाज में, वहाँ से भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था। ऑफिशियल्स उन लोगों को पनिशमेंट भी देते थे जो रूल्स को ओबे नहीं करते थे या ऑर्डर्स को ओबे नहीं करते थे, अनफॉलो करते थे रूल्स को। बहुत सारे ऑफिशियल्स को सैलरीज भी दी जाती थी। जो दूत थे उनको इधर उधर भेजा जाता था, और जो जासूस थे वो अधिकारियों पे नज़र भी रखते थे। जो एम्परर थे वो खुद इन सब चीज़ों की देखरेख करते थे, किस हेल्प के साथ? रॉयल फैमिली के मेंबर्स और सीनियर मिनिस्टर्स की हेल्प के साथ एम्परर भी ये सब चीज़ों की देखरेख करते थे कि सब काम अच्छे से हो रहा है या नहीं। देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस, तो दूसरे एरियाज भी थे। ईच ऑफ दीज वॉज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। तक्षशिला और उज्जैन में भी रूल होता था, और वो जो कैपिटल, प्रोविंशियल कैपिटल थी पाटलिपुत्रा, वहीं से रूल्स होते थे तक्षशिला और उज्जैन के लिए भी। Although there was some amount of control from Patliputra and royal princes were often thanked as governors, local customs and rules were probably followed. So, जो कुछ अमाउंट का कंट्रोल वो पाटलिपुत्रा से होता था तक्षशिला और उज्जैन में, और जो रॉयल प्रिंसेस होते थे उनको गवर्नर बना के इन लोकेशंस पे भेजा जाता था, एंड फिर लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वहाँ पे ओबे करवाए जाते थे। Besides, there were vast areas between these centers. Here the Mauryas tried to control roads and rivers which were important for transport, and to collect whatever resources were available as tax and tribute. जैसा कि देखा गया है कि बहुत बड़े बड़े एरियाज थे इन सेंटर्स के बीच में। जो मौर्य ने क्या ट्राई किया, फिर उन्होंने रोड्स एंड रिवर्स पे अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। रोड इम्पोर्टेंट थी ट्रांसपोर्ट के लिए, एंड रिवर भी इम्पोर्टेंट था रिसोर्सेज। रिवर इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। तो उन्होंने ये सब करना शुरू कर दिया, एंड टैक्स भी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। जहाँ जहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल थे, रिसोर्सेज के नाम पे भी टैक्स कलेक्शन शुरू हो गया। For example, the Arthashastra tells us that Northwest was important for blankets and South India for its gold and precious stones. It is possible that these resources were collected as tribute. अर्थशास्त्र बुक में हमको देखने को मिला कि जो नॉर्थ वेस्ट एरिया था वो इम्पोर्टेंट था ब्लैंकेट्स के लिए, एंड जो साउथ इंडिया का एरिया था वो इम्पोर्टेंट था गोल्ड और प्रेशियस स्टोन्स के लिए। और ऐसा देखा गया है कि ये रिसोर्सेज कलेक्ट किए जाते थे एज अ ट्रिब्यूट। अब हम देखते हैं व्हाट इज ट्रिब्यूट। सो अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, tribute was collected as and when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly. ये टैक्सेस की तरह नहीं था जो रेगुलर कलेक्ट किया जाता था, पर ट्रिब्यूट क्या था, ये भी कलेक्ट ही किया जाता था, पर उन लोगों से जो अलग अलग वैरायटी की चीज़ें देते थे, चाहे वो अपने स्व इच्छा से जो चीज़ें देते थे वो उनको कहा जाता था ट्रिब्यूट। There were also the forested regions. People living in these areas were more or less independent, but may have been expected to provide elephants, timber, honey, and wax to Mauryan officials. Forest areas भी थे, तो इन एरियाज में से क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि लोग एज अ ट्रिब्यूट क्या क्या दे सकते थे? एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी एंड वैक्स। किनको? मौर्यन ऑफिशियल्स को। The emperor and the capital city. Megasthenes was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta by the Greek ruler of West Asia named Seleucus Nicator. तो सेलेक्यूस निकेटर ग्रीक रूलर थे वेस्ट एशिया के। उन्होंने अपना एक दूत भेजा मेगास्थीन्स, कहाँ पे? चंद्रगुप्त के कोर्ट में।
मेगास्टीन wrote an account about what he saw. तो उसने जो भी वहाँ पे देखा किया वो सब उसने लिखा. Here is a part of his description. चलो देखते हैं मेगास्टीन ने क्या लिखा चंद्रगुप्त के कोर्ट के बारे में. The occasions on which the emperor appears in public are celebrated with grand royal processions. He is carried in a golden palanquin. His guards ride elephants decorated with gold and silver. Some of the guards carry trees on which live birds, including a flock of quaint parrots, circle about the head of the emperor. The king is normally surrounded by armed women. He is afraid that someone may try to kill him. He has special servants to taste the food before he eats. He never sleeps in the same bedroom for 2 nights. तो मेगास्थीन्स ने क्या देखा चंद्रगुप्त के कोर्ट में वो उसने लिखा है. क्या लिखा है मेगास्थीन ने कि जब जब सम्राट मीन्स एम्परर पब्लिक में आते थे तो उस दिन को भव्य शाही जुलूस की तरह मनाया जाता था. एम्परर एक स्वर्ण पालकी में आते थे. उनके जो गार्ड्स थे वो सवारी करते थे एलिफेंट्स की. एंड एलिफेंट जो कि डेकोरेटेड थे गोल्ड एंड सिल्वर से. कुछ गार्ड्स ट्रीज लाते थे बड़े बड़े जिसके ऊपर झुंड होता था पैरेट्स का जो कि सर्कल बना लेते थे एम्परर के हेड पे बिकॉज वो ट्वेंड झुंड होता था पैरेट्स का. ट्वेंड फ्लॉक ऑफ पैरेट्स. और जो किंग था वो सराउंडेड होते थे आर्म्ड वुमेन से मीन्स हथियारबंद महिलाओं से बिकॉज उनको डर रहता था कि कोई ना कोई उनको मार सकता है. उनके कुछ स्पेशल सर्वेंट्स भी होते थे जो कि उन एम्परर के खाना खाने से पहले खुद उस खाने को टेस्ट करते थे. एंड एम्परर कभी भी सेम बेडरूम में 2 रातों से ज़्यादा नहीं सोते थे. उसके बाद एंड अबाउट पाटलिपुत्रा मॉडर्न पटना ही रोड. फिर मेगास्थीन ने कुछ कैपिटल सिटी पाटलिपुत्रा के लिए भी लिखा. दिस इज अ लार्ज एंड ब्यूटिफुल सिटी. इट इज सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल. इट हैज 570 towers and 64 gates. The houses of 2 and 3 stories are built of wood and mud brick. The king's palace is also wood and decorated with stone carvings. It is surrounded with gardens and enclosures for keeping birds. तो पाटलिपुत्रा के बारे में मेगास्थीन्स ने लिखा कि ये एक बहुत ही बड़ी और ब्यूटीफुल सिटी है. बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारों से सराउंडेड है. इसके 570 टावर्स हैं एंड 64 गेट्स हैं. जो हाउसेज यहाँ पे बने हुए हैं वो 2 या 3 स्टोरी बिल्डिंग्स ही हैं. एंड ये नॉर्मली बने हुए वुड के या फिर मड ब्रिक मीन मिट्टी की ईंटों के. जो किंग का पैलेस है वो भी वुड का बना हुआ है और पत्थर की नक्काशी से पूरा डेकोरेट किया गया है. एंड जो पैलेस है वो सराउंडेड है गार्डन से जो कि बर्ड्स के लिए बर्ड्स रखने के लिए बनाए गए हैं. ना अशोका अ यूनिक रूलर. अशोका एक ऐसे रूलर जो बहुत ही यूनिक थे. द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वॉज अशोका. सबसे ज़्यादा फेमस मौर्यन रूलर थे वो थे अशोका. दैट्स वाई वी आर रीडिंग अबाउट हिम इन दिस चैप्टर. He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions. Most of Ashoka's inscriptions were in Prakrit and were written in the Brahmi script. अशोका एक ऐसे पहले रूलर हुए जिन्होंने अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की इंस्क्रिप्शंस के थ्रू. एंड जो भी इंस्क्रिप्शंस उन्होंने लिखवाई वो सब प्राकृत लैंग्वेज में. प्राकृत लैंग्वेज वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज जो हर इंसान समझ सके. एंड ये सब इंस्क्रिप्शन लिखी गई थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में. अशोका's war in कलिंगा. कलिंगा इज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा. कलिंगा पुराना नाम है कोस्टल ओडिशा का. लेकिन कलिंगा के बारे में पढ़ने से पहले वी विल सी कलिंगा ऑन आवर मैप. लेट्स गो टू मैप नाउ. So here is the map. And now we can see the area of coastal Orissa, which is Kalinga. This is the area of coastal Orissa, Kalinga. Ancient name Kalinga. Ashoka fought a war to conquer Kalinga.
However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. अशोका ने युद्ध लड़ा कलिंगा को जीतने के लिए, पर क्या हुआ? जब अशोका ने अपने आसपास हिंसा और रक्तपात देखा तो वो भयभीत हो गए, हॉरिफाइड हो गए और उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो आज के बाद कोई और युद्ध नहीं लड़ेंगे। वो एक इकलौते किंग है हिस्ट्री में, वर्ल्ड की हिस्ट्री में, जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद भी अब त्याग कर दिया विजय का, अपनी विजय का त्याग कर दिया युद्ध को जीतने के बावजूद भी। इसीलिए हमारे चैप्टर के नाम है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर, ऐसा सम्राट जिसने युद्ध छोड़ दिया। अशोका इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वॉर। अभी हमने देखा कि अशोका ने इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब करवाए, ऐसा ही एक इंस्क्रिप्शन भी इंस्क्राइब किया जहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया कलिंगा वॉर के बारे में। दिस इज व्हाट अशोका डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। 8 years after becoming king, I conquered कलिंगा। अशोका ने क्या लिखा वहाँ पे कि 8 साल राजा बनने के बाद उन्होंने कलिंगा को जीता युद्ध करके। About 1.5 lakh people were captured and more than 1 lakh of people were killed. This filled me with sorrow. Why? लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया और लाख लोगों से ऊपर को मारा गया, और इस सब देख के मेरे को बहुत दुख हुआ, मेरा दिल दुख से भर गया। ऐसा क्यों? Whenever an independent land is conquered, lakhs of people die and many are taken prisoner. Brahmins and monks also die. People who are kind to their relatives and friends, to their slaves and servants die or lose their loved ones. That is why I am sad and have decided to observe Dhamma and to teach others about it as well. I believe that winning people over through Dhamma is much better than conquering them through force. I am inscribing this message for the future so that my son and grandson after me should not think about war. Instead, they should try to think about how to spread Dhamma. तो उनका दिल दुख से क्यों भर गया? क्योंकि उनके मन में आया कि जब भी हम कोई इंडिपेंडेंट लैंड है उसको कनकर करते हैं तो बहुत सारे लोगों की जान जाती है, बहुत सारे लोग प्रिजनर में जाते हैं, ब्राह्मीन, मॉन्क्स ये सब भी मरते हैं। जो लोग अपने रिलेटिव दोस्तों के साथ बहुत अच्छे होते हैं, अपने स्लेव्स के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, वो मर जाते हैं। कई अपने प्यारे लोगों को खो देते हैं। इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ और मैंने एक चीज़ डिसाइड की है कि मैं अब धम्मा ऑब्जर्व करूँगा और लोगों को धम्मा के बारे में बताऊँगा, पढ़ाऊँगा। और धम्मा से लोगों को जीतना मेरे को ज़्यादा बेहतर लगता है युद्ध के ऊपर। युद्ध करके जीतने से ज़्यादा बेहतर है धम्मा से लोगों को जीतना। इसीलिए मैं ये मैसेज इंस्क्राइब करवा रहा हूँ फ्यूचर के लिए, मेरी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, ताकि वो लोग युद्ध के बारे में सोचे नहीं और वो एक ही चीज़ सोचे कि वो लोग धम्मा को कैसे दुनिया में फैलाएंगे। तो धम्मा क्या है? धम्मा प्राकृत वर्ड है, संस्कृत वर्ड धर्म के लिए। धर्म इज अ संस्कृत वर्ड एंड प्राकृत नेम है उसका धम्मा। प्राकृत नेम मीन्स द नेम जो ऑर्डिनरी लोग समझ सकते थे। What was Ashoka's Dhamma? तो अब अशोका का धम्मा क्या था? Ashoka's Dhamma did not involve worship of a god or performance of a sacrifice. He felt that just as a father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subjects. He was also inspired by the teachings of the Buddha. तो अशोका का धम्मा में ये नहीं था कि आप भगवान की पूजा करो या फिर कोई त्याग करो या हवन करो, पर उसने क्या सोचा कि जैसे एक बाप अपने बच्चों को सिखाता है वैसे ही मेरी ड्यूटी है कि मैं लोगों को सिखाऊं
एंड उसको इंस्पिरेशन बुद्धा की टीचिंग से भी मिली। देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम दैट ट्रबल्ड हिम, पर ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनसे अशोका भी बहुत परेशान हुए। कैसी कैसी प्रॉब्लम्स थी? पीपल इन द एम्पायर फॉलोड डिफरेंट रिलीजन एंड दिस समटाइम्स लेड टू कॉन्फ्लिक्ट। Animals were sacrificed, slaves and servants were ill treated. Besides, there were quarrels in families and amongst neighbors. Ashoka felt it was his duty to solve these problems. So he appointed officials known as the Dhamma Mahamatta who went from place to place teaching people about Dhamma. तो कौन कौन सी प्रॉब्लम से अशोका परेशान थे? लोग एम्पायर में अलग अलग रिलीजन फॉलो करते थे जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो जाते थे। एनिमल्स का बलिदान दिया जाता था। दास दासियों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। झगड़े होते थे, लड़ाइयाँ होती थी फैमिलीज में ही या फिर पड़ोसियों के साथ, नेबर्स के साथ। तो अशोका ने क्या सोचा कि ये उसकी ड्यूटी है कि वो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। इसके लिए उसने ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जिनको कहा जाता था धम्मा महामत्ता, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और लोगों को धम्मा के बारे में बताते थे, पढ़ाते थे। Besides, Ashoka got his messages inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read his message to those who could not read it themselves. उसके बाद अशोका ने अपने मैसेजेस को इंस्क्राइब करवाना किया रॉक्स एंड पिलर्स पे, और ऑफिशियल्स, ये धम्मा महामत्ता वाले ऑफिशियल्स को बोला कि जो लोग ये मैसेजेस खुद से नहीं पढ़ सकते आप उनको खुद पढ़ के बताओगे और सुनाओगे। Ashoka also sent messengers to spread ideas about Dhamma to other lands such as Syria, Egypt, Greece, and Sri Lanka. He built roads, dug wells, and built rest houses. Besides, he arranged medical treatment for both human beings and animals. इसके अलावा अशोका ने अपने दूत भेजे अलग अलग जगह पे ताकि वो धम्मा को स्प्रेड कर सकें। कहाँ कहाँ पे? सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका। अशोका ने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह, रेस्ट हाउसेस भी बनवाए। इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट का भी अरेंजमेंट किया, ना कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए पर एनिमल्स के लिए भी। अब हम इस इमेज में देख सकते हैं रामपुरवा बुल। दिस इज एन इमेज ऑफ रामपुरवा बुल। ये भी पार्ट है मौर्यन पिल्लर का, जो कि रामपुरवा बिहार में पाया गया था और अभी प्रेजेंट डे में ये राष्ट्रपति भवन में प्लेस्ड है। तो ये एग्जाम्पल है स्किल ऑफ द स्कल्प्टर्स ऑफ द टाइम ऑफ द मौर्यन। सो ये देखो, अशोका's messages to his subjects। अब अशोका के क्या मैसेजेस थे? People perform a variety of rituals when they fall ill, when their children get married, when children are born, or when they go on a journey. These rituals are not useful. If instead people observe other practices, this would be more fruitful. तो अशोका ने क्या कहा कि लोग बहुत सारे रीति रिवाज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं जब वो बीमार होते हैं या जब उनके बच्चों की शादी होती है, बच्चे पैदा होते हैं या फिर वो कहीं बाहर घूमने जाते हैं। तो ये सब रीति रिवाज यूज़फुल नहीं है, पर इसके अलावा लोगों को कुछ अदर प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जिनसे उनको जो दूसरों के भी काम आए। तो वो क्या प्रैक्टिसेस थी? व्हाट आर दीज अदर प्रैक्टिसेस? These are being gentle with slaves and servants, दास दासियों के साथ अच्छे से व्यवहार करना, respecting one's elders, बड़ों को रिस्पेक्ट देना, ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन, करुणा से सब क्रिएचर्स को ट्रीट करना, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं या फिर एनिमल्स। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज one's own religion or criticize another's. Each one should respect the other's religion. If one praises one's own religion while criticizing another's, one is actually doing greater harm to one's own religion. Therefore, one should try to understand the main ideas of another religion and respect it. ये भी गलत है कि आप अपने रिलीजन को तो बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हो पर दूसरे के रिलीजन की क्रिटिसाइजेशन कर रहे हो,
दूसरे के रिलीजन को बुरा बता रहे हो। तो आपको हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि अगर आप अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट दे के दूसरे को रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो इसका मतलब भी यही है कि आप अपने रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हो। इसलिए हर किसी को रिस्पेक्ट दो, हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट दो। सो ये सब प्रैक्टिसेस थी जो अशोका सबको कहते थे, टीच करते थे, अपना मैसेज देते थे कि आप ये सब प्रैक्टिसेस करो। पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रोड। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कुछ लिखा, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। His edicts still speak to us in a language we can understand and we can still learn much from them. पंडित जवाहरलाल जी क्या कहते हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शंस दी थी अशोका ने, वो ऐसी लैंग्वेज में दी थी कि वो लैंग्वेज हम आज भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और अभी भी हमको बहुत कुछ सीखना है अशोका के मैसेजेस से। सो हियर इज एन इमेज ऑफ अ ब्राह्मी स्क्रिप्ट। दिस इज अ ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अर्ली ब्राह्मी, देवनागरी, Bengali, Malayalam, Tamil. So this script is for the letter A. In early Brahmi, it was like this. Then Devanagari, which is Hindi script. Sorry, Devanagari is the script for Hindi. Then Bengali, Malayalam, and Tamil. So here we have seen about Ashoka, the emperor who gave up war. But elsewhere also something was happening. Let's see now. So, somewhat before the time of Mauryan Empire, about 2400 years ago, emperors in China began building the Great Wall. तो हमने देखा कि जो मौर्यन एम्पायर था वो फाउंड किया था चंद्रगुप्त जी ने अराउंड 2300 years ago. पर उससे भी पहले 2400 years ago चाइना में एम्परर्स थे जिन्होंने स्टार्ट की बनानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. It was meant to protect the northern frontier of the empire from pastoral people. Additions to the wall were made over a period of 2000 years because the frontiers of the empire kept shifting. The wall is about 6,400 kilometers long and is made of stone and brick with a road along the top. Several thousand people worked to build the wall. There are watchtowers all along at distances of about 100 to 200 मीटर. तो ये ग्रेट वॉल क्यों बनानी शुरू की? ताकि वो अपनी सीमा को, उत्तरी सीमा को प्रोटेक्ट कर सके पेस्टोरल पीपल से. पेस्टोरल पीपल लाइक हर्ड्समैन. तो इस वॉल पे एडिशन हुए 2000 साल पहले तक एडिशन हो रहे थे, क्योंकि जो उनकी सीमा थी वो चेंज होती जा रही थी थोड़े थोड़े टाइम में शिफ्टिंग के कारण. और ये वॉल है वो 6400 किलोमीटर लॉन्ग है एंड बनी हुई है पत्थर और ईंटों की. एंड टॉप तक, इस वॉल के टॉप तक रोड भी बनाई गई है. बहुत सारे लोगों ने, several thousand people worked to build the wall. एंड थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस पे वॉच टावर भी लगे हुए हैं इस वॉल में. Here we can also see an image of Great Wall, which was built around 2400 years ago. This is an image of Great Wall of China. So here we complete our chapter 8 of history, Ashoka, the emperor who gave up war. If you still have any doubts, you can ask me in the comment section. If you all like my video, then kindly subscribe to my channel Naveen Chahat Life Lens, and also like, comment and share. Thank you for watching.